Howdy everyone. Hey guys, welcome. Good afternoon. How's everyone doing today? Quickly confirm if you guys are able to hear me. Hello Sahil, welcome. All right, so we are with algebra so far. We are done with surds and indices, right? Surds and indices done and dusted. Now we're going to start with linear equations. Yes, under linear equations today we are going to do two types of questions. One is solving them, how to solve linear equations, and then we will be looking at integral solutions, how to find integral solutions, and then we'll be doing some word problems, right? Yeah, this is what we are aiming at for today. This is today's agenda. Guys, are you all able to hear me? Because I'm not seeing any chat. I'm wondering if the audio is clear, if you're able to see me, hear me. एक बार confirm कर लो, right? Yeah, super. Chalo, so this is what we've seen. My name is Amit Surana. I am an educator at Unacademy. I've been at Unacademy for more than a year now. And I've been in this training industry for more than 7 years, and I have trained more than 2.5 lakh students in all aspects. This is the link for the Telegram group. If you haven't already joined this, guys, ये अगर आपने अभी तक join नहीं किया तो कर लो. The link is in the description below. Okay. All right. So let's start with linear equations. What do you mean by an equation? First, let's talk about that. Okay. First things first, let's talk about what do we mean by an equation. So there are, one second, yeah, so there are two things when it comes to expression, right? An expression, equation, and the other part will be what? An inequation or an inequality, right? Inequation, inequality एक ही चीज है. Expression, equation, inequality. Yes, if I take up any random algebraic expression, let's say 2x square plus 4x minus 3. Okay, 2x square plus 4x minus 3, or let's even be a little bit more logical. Yeah, so let's say x square x square minus 3x plus 2. This is an expression. Yes, this is an algebraic expression. If this is not equated to anything, not compared to anything, it's called an expression. Okay. Now if I take the same thing and I put it as something, x square minus 3x plus 2 equal to something. Here x could be any value. X could be any value. Am I right, guys? यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो. 1 2 3 minus 1 minus 2 square root of 5 square root of 12, anything you want to, any value. Yes, here in an equation we always ensure that we equate it to some number, and on the right side it should always be a 0, right? So this becomes an equation. Yes, this is an equation. That means for some value of x, this expression ka value should be equal to 0. It should satisfy this. Yes, that means x cannot take up any value. X can only take up two values, which are 1 and 2. Am I right? Yes, guys. If I put any other value instead of 1 and 2, if I put any other value, would it satisfy? No, it would not. Understood? That's called an equation. Okay. And what is an inequality? If I take this x square minus 3x plus 2, and if I say this has to be greater than 0,
Yes, greater than 0, less than 0, greater than equal to 0, less than equal to 0. That means it's not equal to anything, but then we can get the range. When this is the case, then what happens? You can't, there's no definite value for x. X cannot take up any definite value. That means there are multiple solutions for it. Are you able to get this, guys? Multiple solutions. Yes, so what does this mean? In an expression, it doesn't give you any solution per se, because you're not equating it to anything. There's no solution. Here there will be definite solution. There has to be some definite solution. Yes, and here there will be what? Multiple solutions, infinite solutions. We can't say infinite, but we can say more than one solution, or multiple solutions. Let's keep it like this itself. Understood? Yes, guys. So you need to understand the difference between expression, equation and inequality. Okay, now what are we talking about today? We're talking about equations. Yes, and equation means what? Any algebraic expression equated to some number. In most cases it has to be 0, right? So under equation we have degree, है ना? जैसे लेवल होता है, हर गेम में लेवल होता है, तो इक्वेशंस में भी लेवल होता है, डिग्री होता है, राइट? डिग्री को अपन n बुलाते हैं, ठीक है? इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. यस, व्हाट इज इट? इट्स ऑफ द फॉर्म ax plus b इक्वल टू 0. मैं आपको कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं, ठीक है? जनरल फॉर्म. Look at this carefully, okay? General form, it's given as a x power n plus b x power n minus 1 plus c x power n minus 2 all the way till whatever is the last term. Yes, so क्या रहेगा? n x power n minus n, which is x power 0. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1. This should be equal to 0. This is the general form. Guys, this is the general form of any algebraic equation. ठीक है? इसको अपन क्या बुलाते हैं? We call it a polynomial equation, polynomial expression. Then if we equate it to something, it becomes polynomial equation. ठीक है? Polynomial का मतलब क्या है? There will be, what do you mean by polynomial, guys? There will be more than one there'll be more than one degree, right? One or more than one degree. Okay, so linear में क्या हो गया? Because n is equal to 1, we get ax plus b equal to 0. What will be the name of the equation where the degree is 2, guys? Second degree equation का नाम क्या रहेगा? Anyone? जल्दी बोलो. Second degree equation का नाम क्या रहेगा? कौन बोलेगा? हाय गुलाम, हेलो श्रुति, हाय समर्थ, हेलो वेदांत, गुड आफ्टरनून प्रिंस, निताशा, चेतन. यस, हाय विशाल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी गुड अमन. So when the order is 2, when the degree is 2, it's called a quadratic equation. Yes, तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्वाड बाइक नहीं साहिल, क्वाड बाइक तो चलाते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चलाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यस, व्हेन n इज इक्वल टू 3 यू गेट अ क्यूबिक इक्वेशन. यस, जहां का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. So if you noticed, ये ऐसे जाता रहेगा, n equal to 4, n equal to 5, biquadratic, penta, all so on. Okay, if you've noticed, the number of terms in the equation will always be n plus 1, है ना? Number of terms in that equation will be what? N plus 1. Am I right, guys?
जैसे लीनियर इक्वेशन में n 1 था बट नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए, ax and b. क्वाड्रेटिक में n 2 था, n was equal to 2 but how many terms do we have, 1 2 and 3. क्यूबिक में 4 terms and so on. Okay, now here we also have to talk about what, number of solutions. Number of solutions, what do you mean by solutions guys? Solutions, zeros, roots all mean the same. Solutions, zeros, roots all mean the same. ये सब क्या है guys? Values of x. Values of x that satisfy, है ना? Correct Sahil, super. Values of x that satisfy the given equation. So number of solutions will always be equal to the number of will always be equal to the degree. Yes, it will always be equal to the degree. Are you getting this? लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 है मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 है मतलब सिर्फ 2 सॉल्यूशंस रहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशंस रहेंगे एंड सो ऑन. ठीक है ना, ये बेसिक्स है. दिस इज द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. वंस वी नो दिस वी विल गेट इनटू लीनियर इक्वेशंस ना. ठीक है, आज का अपना एजेंडा क्या है गाइस, लीनियर इक्वेशंस. Yeah, so linear equation is of the form what, ax plus b equal to 0. ये अपन ने देख लिया, ax plus b equal to 0 general form. What are we going to look at? The kind of questions will be solution based. Find out the solution and find out the number of integer solutions. Yes, integer solutions, positive integer solutions. जहाँ पे solutions पे वो लोग when they put in the solutions when they put a containment, when they try to चलो ठीक है, वो नहीं आ रहा, वर्ड नहीं आ रहा है, अपन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. हियर इज द फर्स्ट वन. सो क्विकली गो अहेड गाइस, ट्राई करो आप लोग. वी हैव टू सॉल्व फॉर x. That means we need to find the value of x. के x का वैल्यू क्या होगा where this will satisfy. Let's see if you all can quickly try this. जल्दी से try करो. Weighted average, mixtures, alligations same नहीं होता है, क्या बोल रहे हो? These are two different concepts. समर्थ, weighted average और mixture alligation दो अलग अलग concept है. They fall under the same topic. हाँ तो क्या हो गया समर्थ, आंसर सेम आता है का क्या मतलब है? वैसे तो मैं बोल दूं कि मल्टीप्लिकेशन और पावर सेम है. मल्टीप्लिकेशन और पावर सेम है. आर दे इक्वल? मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट सेम है क्या? आंसर तो सेम आएगा. मल्टीप्लिकेशन में 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो ये भी आंसर सेम रहेगा, 2 पावर 3 का भी आंसर सेम रहेगा. दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ना. राइट, चलो आंसर करो गाइस. प्रिंस एंड वेदांत आर सेइंग 2.7. वेरी गुड. So whenever we deal with linear equations, the best way to deal with them would be what? To bring in everything to the left hand side, 1, or just bring in the expressions containing the variable to one side and everything else to the other side, right? But क्योंकि यहाँ पे देखो, because we will ultimately have to take LCM at one point, and क्योंकि यहाँ पे सब कुछ fraction में है, पहले ही LCM ले लो. Yes, पहले ही LCM ले लो. So 3, 5 और 4 का LCM क्या होगा guys? 3, 5 और 4 का LCM 60. तो पहले ही ले लो LCM. This is 20 times x by 60 plus this is 12 times by 60. Yes, will be equal to, this will be what? 30 times x minus 15 by 60. है ना? तो ये 60 60 cancel. What do we get? 20x, 30x, 12 and 50. Now bring all x to the one side. 20x यहाँ पे लेके चले जाएंगे. 30 minus 20x is 10x. Should be equal to
since we took this here, 15 plus 12, 27. So what is x? 27 by 10 or 2.7. ठीक है ना? So we did the same process. LCM ही लिया अपन ने, but I took LCM at once. नहीं तो फिर आपको दो बार लेना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. I removed that out of the equation itself. मैंने डिनोमिनेटर को इक्वेशन से ही हटा दिया. ठीक है, चलो सुपर. एवरीवन हु सेड 2.7, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. प्रिंस, वेदांत, निताशा, श्रुति. चलो नाउ द नेक्स्ट वन, वी नीड टू सॉल्व फॉर y. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन दिस केस. क्विकली ट्राई दिस. अच्छा, बिफोर यू सॉल्व दिस गाइस, पहले ये बोलो कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है. इज दिस लीनियर और इज दिस क्वाड्रेटिक? जल्दी से बोलो. साहिल से इज क्वाड्रेटिक, ठीक है. शर्ली से इज क्वाड्रेटिक. अमन भी बोल रहे क्वाड्रेटिक, ठीक है. चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर आपको रियलाइज होगा कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है. इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो. प्रिंस ऑल्सो सेज क्वाड्रेटिक, ओके. तो गाइस आज से अपना क्लास यही टाइमिंग पे होगा, ठीक है. आज से अपना क्लास यही टाइमिंग पे होगा. 12:30 को अपना बैक बेंचर्स बैच. यस, फिर 3 PM को अपना बिगिनर्स बैच, एंड देन 6 PM को वी विल बी डूइंग दैट प्रैक्टिस अरीना. बैक बेंचर्स बैच प्रैक्टिस अरीना, है ना. This is on the app, this is on YouTube, this is also on YouTube, okay. This is the timing, ठीक है. चलो, वेदांत is saying 5, Prince is saying 1.5. साहिल has now finally realized कि linear है, quadratic नहीं है. Very good, superb. Chalo, let's have a look at this question now. So what will we do to go ahead with the solution? We will first take this to the other side, right? Cross multiply. So we will get y plus 2 into 7 minus y should be equal to 5 minus y into 4 plus y. Yes. Now we multiply inside. Y into 7 is 7y, minus y into 2 is minus 2y, so you will get what? 7y minus 2y is 5y. Yes, then you have a minus y square, and you have plus 2 into plus 7 is plus 14. Same way here also. Yes, क्या हो जाएगा? minus y square. Now what do you have? 5y minus 4y, which is plus y, and plus 20. Yes, now we might think that this is quadratic, but equation को जब भी आप judge करते हो, that time everything should be on one side. Yes, everything should be on the one side. So अगर मैं इसके terms यहाँ पे लेके आ जाऊँ, if I bring all these terms here, what will happen? ये सारे टर्म्स अगर मैं इस साइड में लेके आ जाऊं, व्हाट विल हैपन? माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. दिस वन डजंट इवन मैटर एनी मोर. प्लस आपको क्या मिल रहा है? 5y माइनस वाई प्लस 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. एम आई राइट? यस. सो व्हाट आर यू गेटिंग? ये 0 हो गया. दैट मीन्स इट्स नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज लीनियर. 5y minus y is 4y, 14 minus 20 is minus 6 is 0, so 4y is 6
or y is 6 by 4, which is 3 by 2, that's nothing but 1.5. Yes, so before looking at the equation completely, equation को पूरा देखने के पहले उसे जज मत करो, right? Don't judge an equation by its cover. I don't know, वो कोट सही बैठ रहा क्या? Don't judge an equation by its cover, ठीक है? मतलब इक्वेशन जैसे दिखता है उसे जज मत करो, ओके? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी नीड टू सॉल्व फॉर z. सॉल्व फॉर z. z का वैल्यू निकालो जल्दी से, क्विकली ट्राई. Quick guys. So there is very little time left, so please could you tell me which topics are important and should be covered? Shreya, okay, I normally don't condone this kind of behavior. Last minute start करो फिर important देख लो, but I've done that all my life. मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में यही करा है कि पूरा साल कौन ध्यान देता है, कौन पढ़ता है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले बैठो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लो. बट दैट वर्क्स ओनली फॉर योर स्कूल टेस्ट या कॉलेज टेस्ट, है ना? कैट इज नॉट लाइक योर स्कूल और कॉलेज टेस्ट. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फिक्स्ड सिलेबस है और उसी सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना श्रेया? बट अभी क्योंकि टाइम कम है और मैं ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता फालतू का कि सर अभी ज्ञान मत दो सर, मेरे को जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दो, तो मैं उसका जवाब देता है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा. मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस. यस, फिर आपके नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न मैथ से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट क्योंकि इसका थोड़ा सा कम है, इट्स वेटेज इज अ लिटिल लेस वेटेज का ये मतलब नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, है ना? सो या दिस इज द डील, ठीक है श्रेया? साहिल says 34 by 39. Very good Sahil. How about others? अमन, ऐसा क्यों अमन? ऐसा क्या किया था आपने कि आपका अकेले का क्लियर नहीं हुआ? और क्या क्लियर नहीं हुआ? बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ? सुमित says the answer to this is 1. Okay. Others? चलो ठीक है. So what's the deal here guys? We need to start solving this, है ना? इसको solve करना है तो पहले let's take the denominator to the other side. What will happen? 12 into 2 34. Sorry, 17 into 2 34. 17 into minus z is minus 17z. Minus 5z minus 60 is equal to 8 into 1 8. 8 into minus 7z is 56z. Yes. Now all we have to do is solve, है ना? तो क्या हुआ? minus 17 minus 5 is minus 22z plus 56z यहां पे आ जाएगा, equal to 8. 34 minus 60 जो कि कितना? 26 minus 26 will come off to this side, so this will become plus 26. So what do you have here? You have 34z, है ना? 56 minus 22 is 34z. 8 plus 26 is 34. So what are you ultimately getting? Z is equal to 1. Yes. साहिल 34 by 39 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, प्लीज चेक योर कैलकुलेशन. Z equal to 1 is the right answer.
ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज बी क्विक विद द कैलकुलेशन प्रोसेस। जो आप मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो वो कैलकुलेशन प्रोसेस में थोड़ा सा जल्दी करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। Now, okay, before we move on, there's a lot of new batches that have started and are starting. बहुत सारे 6 अक्टूबर को भी स्टार्ट हो रहे हैं. You can enroll into them by using my referral code Surana Live and get a 10% discount. ठीक है, plus iconic all of it. If you have any doubts or questions or queries, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो and I'll help you out. Okay, चलो. बेसिक्स हो गया बट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा. कहाँ से कर रहे हो अमन आप क्वेश्चंस? आप क्वेश्चंस कहाँ से कर रहे हो? समर्थ क्या भेजा भाई आपने? क्लास के बीच में क्या भेजा है? समर्थ आप अपन इसके बारे में आज शाम में बात करेंगे. 6 बजे अपन मिक्सचर एलिगेशन कर रहे हैं ना. 6 o'clock टुडे वी आर डूइंग मिक्सचर एलिगेशंस, राइट? तब बात करेंगे, ठीक है. आपका अंडरस्टैंडिंग जो है, दीज आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. वेटेड एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है. बोथ कैन बी यूज्ड फॉर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. बोथ कैन बी यूज्ड फॉर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके. बट उनका जो प्रोसेस है यूज करने का वो अलग है. ऑलराइट. अरुण शर्मा से कौन सा लेवल कर रहे हैं अमन? विच लेवल आर यू डूइंग फ्रॉम अरुण शर्मा? लेवल 1. Okay, Sahil says minus 16.5. Others? Aman says 1. अच्छा, लेवल 1 और लेवल 2 कर रहे हो. मैं सोचा इसका आंसर 1 और 2 दो कैसे आ रहा है. Sumit says 17. Okay. चलो, let's do this question. डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. फ्रैक्शंस लेके सॉल्व करना है, फ्रैक्शंस लेके सॉल्व कर सकते हो. द चॉइस इज योर्स. ओके, अपन डायरेक्टली करेंगे. 0.5a minus 9 और व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपल करते. 0.5 by 0.25 is 2a. 0.5 by 0.25 is 2a. 9 by 0.25 is 36. This is equal to 4a minus 3. Easier this way, right? तो 2a यहाँ पे गया. 4a minus 2a is 2a. Yes, and minus 3 would come here. Am I right? Yes, which is how much? Minus 33. Minus 36 plus 3 minus 33. So what is a? Minus 33 by 2, which is minus 16.5. Minus 16.5 is right. सुमित एक बार चेक कर लो. हाँ, minus 16.5. तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग दिस टू द अदर साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बदले अपन ने क्या लिया? वी टुक दिस एज 1/4. 0.5a minus 9 by 1/4 is equal to 4a minus 3. समझ रहे हो? ये 1/4 को अपन ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर लिया, रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो गया? 2a minus 36. अंडरस्टूड? ठीक है ना. सो सॉल्विंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, जैसे भी इक्वेशंस है, सॉल्विंग इज ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू मैनिपुलेट द गिवन इक्वेशन. जो इक्वेशन दिया उसे मैनिपुलेट करो. ओके, चलो ट्राई दिस. अब इस क्वेश्चन में आपने कुछ वियर्ड सा देखा होगा. यू वुड हैव कम अक्रॉस समथिंग वियर्ड इन दिस. व्हाट आर दीज 2 लाइन्स? ये जो 2 लाइन दिए इसका क्या मतलब है? यस, दिस इज अ फंक्शन, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मॉडुलस x में ले रहा हूं. दिस इज अ फंक्शन. व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन इज दिस? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. यस, ऑल्सो नोन एज, अपन इसको क्या बुलाते हैं? मॉड्यूलस, है ना. इस फंक्शन का क्या नाम है? मॉड्यूलस, राइट. तो ये क्या करता है? इफ लेट्स से ये y है, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x. इफ x इज इक्वल टू 1 देन y विल बी इक्वल टू 1. if x is equal to -1 even then y will be equal to +1 only. Yes, तो ये क्या करता है? What does the modulus function do? It removes off the sign.
साइन को नलीफाई कर देता है. यस, दैट मीन्स ओनली द मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू मैटर करता है. मैग्नीट्यूड मैटर्स, कौन से डायरेक्शन में है वो नहीं मैटर करता. वेदर इट्स टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन और लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन, जीरो के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है वो नहीं मैटर करता, सिर्फ वैल्यू मैटर करता है. बट हमें क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, नॉट द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन. पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं चाहिए हमें, n का वैल्यू चाहिए. मतलब इसका क्या मतलब हो गया, दैट मॉडुलस x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स x कुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 ऑल्सो, है ना. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. अंडरस्टूड. तो whenever you deal with this, always remember, I'll tell you a quick way in which you can do it, right? Whenever you have modulus x is equal to, let's say 5, you will take two cases, case 1, case 2. केस 1 में आप इसके वैल्यू को पॉजिटिव रखोगे, x is equal to 5. इन केस 2 what you will do is, जो भी राइट साइड में है, मॉडुलस के जो भी राइट साइड में, उसे आप नेगेटिव कर दोगे, x could be -5. समझ रहे, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे आप इसको नेगेटिव कर रहे हो. सो सेम चीज अगर अपन यहां पे लगाएंगे, इफ यू अप्लाई इट हियर, व्हाट हैपेंस, 2n-5 का मॉडुलस वैल्यू इज 11. इसका क्या मतलब हो गया, दो केस बनेंगे यहां पे. फर्स्ट केस विल बी व्हाट, कि जो 2n-5 है वो एक्चुअल में पॉजिटिव 11 ही है, या फिर जो 2n-5 है वो -11 भी हो सकता है ना, क्योंकि -11 का फिर अपन मॉडुलस निकाल देंगे तो +11 हो जाएगा. आर यू फीलिंग दिस गाइस? पहले केस में अपन पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरे केस में अपन पूरा एक्सप्रेशन को नेगेटिव ले लेंगे. दैट्स इट. नाउ यू सॉल्व, यू विल गेट टू वैल्यूज, राइट? सो 2n-5 इज 11, 2n इज 16, n इज इक्वल टू 8, और 2n-5 is -11, 2n is -6, -11 plus 5, n is -3. Understood? So for both of these values, 8 and -3, modulus का जो वैल्यू होगा वो 11 होगा. Yeah. So whenever you have modulus, जब भी आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आता है, मॉडुलस आता है, तो हमेशा याद रखो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री. यस, इट कुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री. जैसे यहां पे लीनियर है, एक्सप्रेशन तो लीनियर है, बट सॉल्यूशन 2 है, 1 and 2. ठीक है ना? अंडरस्टूड? कोई डाउट है यहां पे गाइस? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एब्सोल्यूटली समझ में आया क्या? मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया? श्रुति आ गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. वी हैव टू सॉल्व फॉर t. रीड द एक्सप्रेशन केयरफुली, ठीक है? एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जो केसेस है, पॉजिटिव नेगेटिव के जो केसेस है, उसके बाद में लगाना, पहले मत लगा देना. Try this out, guys. यहाँ पे भी मॉडुलस है, but please be careful when you deal with it, okay? Sahil says -1 and -5. Very good. Others?
-1 and -5, वेरी गुड वेदांत, बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट केस सेकेंड केस लगाने के पहले हमेशा ये ध्यान में रखो, whenever you come across a situation like this, you should only have the modulus part on left side, बाकी सब कुछ राइट साइड में कर दो। Yes, only the modulus part on the left side, everything else on the right side. तब आप पॉजिटिव नेगेटिव इजीली लगा सकते हो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट। सो इट्स बेटर टू डू इट लाइक दिस। तो अपन क्या करेंगे, 5 टाइम्स मॉडुलस t प्लस 3 -3 इज 7, है ना। तो ये -3 को इस साइड लेके चले जाएंगे। 5 टाइम्स मॉडुलस t प्लस 3 इज इक्वल टू 10, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। t प्लस 3 का जो मॉडुलस है दैट इज 10/5 विच इज 2। अब आप दो केसेस करो, नाउ डू 2 केसेस। केस 1 जहां पे पॉजिटिव है, सो t प्लस 3 इज इक्वल टू 2, t क्या है, 2 - 3 -1, और नेगेटिव जहां पे t प्लस 3 इज -2, सो -2 - 3 क्या हो जाएगा, -5। गॉट इट। सो t के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, -1 एंड -5। ओके, या तो ऐसे कर लो, ब्रिंग एवरीथिंग टू दी राइट हैंड साइड, सिर्फ मॉड्यूलस वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखो और फिर पॉजिटिव नेगेटिव। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, ये जो t प्लस 3 है इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो। 5 टाइम्स पॉजिटिव t प्लस 3 -3 इज 7, या फिर 5 टाइम्स -t प्लस 3, समझ रहे हो, 5 टाइम्स -t प्लस 3 -3 इज इक्वल टू 7। दिस या फिर दिस, आई वुड प्रिफर दिस, क्योंकि ये प्लस माइनस के चक्कर में बहुत बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है, तो ये मेरा प्रिफर्ड मेथड होगा, बट यू कैन ऑल्सो डू दिस। ठीक है, आ रहा है अभी आप लोगों को मॉडुलस समझ में, गाइस आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड मॉडुलस नाउ? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ रहा है समझ में, एवरीवन? एक बार यस बोलो गाइस जल्दी से, से यस एंड हिट लाइक ऑन दिस वीडियो। चलो, नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें सॉल्व करने को नहीं बोला है, दे हैवंट आस्क्ड अस टू सॉल्व। व्हाट आर दे सेइंग, हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y आर पॉसिबल। हमें वैल्यूज नहीं निकालना है, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वी हैव टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। ओके, whenever you get this you will always find it as 2 variables। ऐसे वाले क्वेश्चंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस में आपको कभी भी 2 और मोर वेरिएबल्स दिखेंगे, x y, है ना, वैसे। चलो ट्राई करो ये वाला क्विकली, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। 3x plus 4 times modulus y is 33। This is number of solutions, number of integer solutions, है ना। ट्राई करिए ये वाला जल्दी से। Are you all trying guys? आप लोग ट्राई कर रहे हो?
ओनली वन पेयर, साहिल सेज ओनली वन, वो तो आंसर चॉइस में नहीं है ना साहिल, ओनली वन इज नॉट देयर इन आंसर चॉइस। प्रिंस सेज मोर देन 5, ठीक है। अलजेब्रा में कितने टॉपिक्स रहते हैं? सर्ज इंडिसेस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम्स, फंक्शंस, 7, ओके। बहुत लोग अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज लगाते हैं, बहुत लोग अलजेब्रा में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। मैंने आई पुट देम एज मॉडर्न मैथ, ठीक है, मैं उनको मॉडर्न मैथ में डालता हूँ। सीक्वेंस, सीरीज, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सब मॉडर्न मैथ में है। मेन जो बेस अलजेब्रा है वो ये है, ठीक है। ओके, अमन इज सेइंग डी, Nitasha is saying C, that there are 4 solutions. Okay, चलो, तो यहाँ पे what we can do is guys, since directly going trial and error is useless, है ना, directly आप trial and error जाओगे useless हो जाएगा। So what do? Look at this. If I say 3x is equal to 33 minus 4 times y, modulus y, है ना, तो y we have to find out ऐसे values of y, we have to find out such values of y जिनका मॉडुलस लेके 33 पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मल्टीपल ऑफ 3 मिले, है ना। तो क्या यहाँ पे ध्यान से देखो, 33 इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 3, यस और नो? 33 इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 3, यस, है ना, मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 4 से जो भी नंबर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, इफ मॉडुलस y इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, ओनली देन दिस विल मैच, है ना। तभी ये मैच होगा कि जब मॉडुलस y भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा तब। तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग आउट मल्टीपल्स ऑफ 3 फॉर y, ओके। y को अगर मैं 0 लूंगा, बिकॉज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस? 3x इज इक्वल टू 33, x इज 11, यस। y का वैल्यू फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 वुड बी व्हाट? 3 वंस, है ना। सो अगर मैं 3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 33 minus 12 which is 11 minus 4, 7. Do you agree guys? Yes or no? 33 minus 12 is 21, 3x is 21. अगर मैं y को -3 भी लूंगा तो क्या हो जाएगा? If I take y as -3, again x का वैल्यू सेम 7 रहेगा, है कि नहीं? Yes, then what is the next one? I take 6. अगर मैं 6 ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 33 minus 24 which is 9, x का वैल्यू क्या होगा? 3. -6 भी लूंगा तब भी क्या होगा? 3 होगा। Are you guys feeling this? Yes, I hope you are able to understand this, है ना? Yeah, next, what if I take the value as 9? अगर मैं y को 9 लूंगा तो क्या वो accepted है? y equal to 9, will that be accepted? क्या हो जाएगा? 3x is equal to 33 minus 4 into 9, 36. So 3x is -3, x is equal to -1. Should this be accepted guys? x minus 1 should be accepted or not? जल्दी से बोलो। शुड बी एक्सेप्टेड, है ना। क्यों एक्सेप्टेड होना चाहिए? क्योंकि इंटीजर बोला है, इंटीजर बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बोला है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोला है, तो मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। -1 एक्सेप्टेड। सेम वे -9 होगा तब भी -1 होगा। आर यू गाइस एबल टू फॉलो दिस? तो मतलब 5 से ज्यादा वैल्यूज तो आराम से हो ही गए। यस, यहां तक ही 5 वैल्यूज हो गए थे। Till here itself we had 5 values, है ना। इसके बाद भी है, so more than 5 values. Understood guys? तो जिन्होंने 4 बोला था या जिन्होंने 1 बोला था, I hope ये sorted है, इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, नथिंग, राइट? चलो, बहुत बढ़िया। Now let's move on to the next question. Before we do that guys, if you are preparing for CAT 2021
alone, just for CAT 2021. And this is a special plus pack of 2 months. Special pack है, अभी के लिए सिर्फ valid है. Yes, 2 months costing you 7,000 rupees. If you use my code Surana Live, अगर आप Surana Live यूज करोगे तो ये 10% से कम होके कितना हो जाएगा? This will become 6,300 rupees. Yes. You will get top educator के revision classes. You will get क्रैश कोर्सेस, टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज. आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा और लाइव वीडियो एनालिसिस मिलेगा. डोंट यूज एनी एजुकेटर कोड, ठीक है? यूज सुराना लाइव. मजाक कर रहा हूं, कोई भी कोड यूज कर लो, बट टेक एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है? इसका एडवांटेज जितना हो सकता है लो. ओके, चलो नेक्स्ट. यहाँ पे यू हैव टू बी डबल केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? देर आर 2 मॉड्यूलस साइंस, 2 मॉड्यूलस है, ध्यान से रहना. निताशा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा से पूछना, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? चलिए गाइस, ट्राई करिए ये वाला. आराम से करना. डबल मॉड्यूलस, हाँ. व्हाट इज वर्स देन 1 मॉड्यूलस? 2 मॉड्यूलस. तो खाना खाता हुआ क्लास लेना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है. खाना खा लो पहले आराम से, फिर क्लास देख लेना. और क्या बोलूं मैं? ऐसे तो नहीं बोल सकता कि खाना जरूरी नहीं है, क्लास जरूरी है. ये तो वही स्कूल टीचर वाला सीन हो जाएगा कि खाना भूलते हो, नहीं भूलते, होमवर्क क्यों भूला? फिर ये तो वही वाला सीन हो गया कि भाई खाना जीने के लिए खाना पड़ता है, होमवर्क जीने के लिए नहीं है. होमवर्क तुम्हारा अम्यूजमेंट के लिए है, बच्चों को तंग करने के लिए. है ना समर्थ? खा लो आराम से, खाना खा लो, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना. ऐसा नहीं है कि भाई ये 1 इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी हूं फिर मैं गायब. ऐसा नहीं है. लाइव देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो एक एडवांटेज है. भाई ये चश्मा साफ क्यों नहीं हो रहा? अलग ही जिद कर रहा चश्मा मेरा. नहीं हो रहा ये वाला प्रिंस. चलो कोई नहीं. चलो लेट्स डू दिस, ठीक है? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है? हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे. हमें क्या चाहिए? इंटीजर्स चाहिए. x और y इंटीजर्स चाहिए. मतलब अगर x और y इंटीजर है तो कैन आई से मॉडुलस x - 3 भी एक इंटीजर होगा. सेम वे मॉडुलस y + 4 भी एक इंटीजर होगा. है कि नहीं गाइस? हाँ या ना? है ना कि अगर x इंटीजर है तो मॉडुलस x भी इंटीजर होगा, मॉडुलस x - 3 भी इंटीजर होगा. सेम वे अगर y इंटीजर है तो मॉडुलस y भी इंटीजर होगा, मॉडुलस y + 4 भी इंटीजर होगा. मतलब क्या? अपन इसको लेट्स से a बुलाते हैं, ठीक है? लेट्स कॉल दिस एज a, लेट्स कॉल दिस एज b. वी वांट a into b to be equal to 12.
तो ए और बी के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे गाइस? ए और बी के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे? 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, यस और नो? सेम वे 4 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 1, यस 4 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 1। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखो। या ऑल्सो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में भी रहेगा, है ना? इफ बोथ आर पॉजिटिव देन यस, इफ बोथ आर नेगेटिव देन ऑल्सो यस, है कि नहीं गाइस? या सो नाउ लेट्स स्टार्ट डीलिंग विद द फर्स्ट वन। ठीक है, 1 और 12 को लेते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू 12, है ना? मतलब क्या कि मॉडुलस x माइनस 3 इज 1, तो मॉडुलस x क्या हो गया? 1 प्लस 3 4। मतलब x के क्या वैल्यूज हो गए गाइस? 2 वैल्यूज हो गए, है ना? +4 -4। सेम वे अगर b 12 है, मतलब क्या? मॉडुलस y प्लस 4 इज 12, मतलब मॉडुलस y क्या हो गया? 12 माइनस 4 8, तो y के क्या वैल्यूज हो गए? 2 वैल्यूज हो गए, +8 -8। डू यू अग्री हियर गाइस? यहां पे वुड यू अग्री विद दिस? यस और नो? या तो यहां पे कितने वैल्यूज हो गए? इसके 2 पॉसिबल, इसके 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, +4 + 8 -4 + 8 +4 -8 -4 -8, है ना? कितने सॉल्यूशंस हुए? 4 सॉल्यूशंस हुए, 4 पॉसिबल वैल्यूज हियर। से यस इफ यू अग्री विद दिस गाइस। जल्दी से हाँ बोलो अगर इससे आप एग्री करते हो। या सेम वे 1 और 12 अपन ने कर लिया। नेक्स्ट 2 और 6 करेंगे, 2 एंड 6, है ना? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा? अगर a 2 है मतलब मॉडुलस x माइनस 3 इज 2, मॉडुलस x इज 5। x के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज? +5 -5। Would you agree with this guys? Same way b, that is modulus y plus 4 is 6, modulus y is 2, y क्या हो गए? +2 -2। तो यहां पे भी 4 वैल्यूज, 4 और 4 8 तो हो गए, 4 और 4 8 तो हो गए। अब या तो आंसर 8 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, राइट? सो फॉर दिस लेट्स ट्राई द थर्ड वन। तीसरा वाला ट्राई करते हैं। a is equal to 3, b is equal to 4। yes, a is 3, b is 4, है ना? तो a अगर 3 है क्या हो जाएगा? मॉडुलस x माइनस 3 इज 3, मॉडुलस x इज 6। x के 2 पॉसिबल वैल्यूज हो गए, +6 -6। या b का क्या हो गया कि मॉडुलस y प्लस 4 शुड बी 4, मतलब मॉडुलस y शुड बी 0, है कि नहीं? मॉडुलस y शुड बी 0, मतलब y के 2 पॉसिबल वैल्यूज है क्या? +0 और -0। से यस इफ दिस इज ट्रू। y के 2 वैल्यूज होंगे क्या? +0 -0। क्या गाइस? नहीं ना, +0 -0 दोनों सेम ही है, मतलब y का सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0। तो यहां पे कितने सॉल्यूशंस हुए? 6, 0 -6, 0, है ना? 6, 0 एंड -6, 0, मतलब कितने हुए? ओनली 2 सॉल्यूशंस हियर। तो 4 4 8 + 2 10, so 10 is our answer। Now some of you had a doubt, some people had a doubt कि सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 4, 3 6, 2 12, 1। चेक करेंगे इसको, ठीक है? इसको चेक करेंगे। लेट्स चेक 4, 3। इफ a is 4 and b is 3, मतलब क्या? मॉडुलस x -3 is equal to 4,
या मॉडुलस x minus 3 is equal to 4, मॉडुलस x is 7. एक्चुअली 10 से ज्यादा आ रहा है. नहीं आएगा. देखो, लुक एट दिस, नहीं आएगा. मॉडुलस x is 7, तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं 7 and -7, बट y का देखो, y का क्या है, मॉडुलस y plus 4 is 3. मतलब आपको क्या आ रहा है, मॉडुलस y is -1. मॉडुलस y -1 हो सकता है क्या गाइस? फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ y मॉडुलस y -1 हो सकता है? यस और नो गाइस, जल्दी से बोलो. कोई भी वैल्यू अपन क्या बोलते हैं, y का कोई भी वैल्यू ले लेंगे, मॉडुलस y कभी भी -1 हो सकता है क्या? नहीं ना, नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. 3 पे नहीं काम कर रहा तो 2 पे भी नहीं काम करेगा, क्योंकि -2 हो जाएगा. मॉडुलस y इक्वल टू -2 विच इज रॉन्ग. मॉडुलस y इक्वल टू -3 विच वुडंट मैटर. सो ये वाला जो सेट है, दिस वुडंट मैटर, ओनली द फर्स्ट 3. तो फर्स्ट 3 में कितने सोल्यूशंस है? 10 सोल्यूशंस. 4 + 4 + 2 इक्वल टू 10 सोल्यूशंस. ओके, तो बिफोर वी पैनिक एक बार चेक कर लेना कभी भी, ठीक है, जैसे अपन ने किया अभी. ऑलराइट, अभी इजी लगा क्या आपको ये? वॉज दिस क्वेश्चन इजी? वॉज दिस क्वेश्चन डूएबल नाउ? इजी लगा? बहुत बढ़िया, सुपर. चलो ट्राई करो ये वाला. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सैटिस्फाई दिस इक्वेशन? 2x + 5y इक्वल टू 103. यहाँ पे नो मॉडुलस, कोई मॉडुलस नहीं है, कोई मॉडुलस नहीं है यहाँ पे. मतलब ये एकदम बचकाना क्वेश्चन है, कि बच्चों वाला क्वेश्चन है. जल्दी से करो ट्राई गाइस. क्लीनर डालू ग्लासेस पे. ढूंढना पड़ेगा पहले रखा का. करिए गाइस, ये वाला ट्राई कीजिए. तनिष से C 10. ओके, अदर्स? प्रिंस भी C बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर. अब यहां पे क्या है, यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. दे आर सेइंग व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स. यस, मतलब अपन नेगेटिव नहीं कंसीडर कर सकते. वी ओनली हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव वंस. या नो वैल्यूज आ रहा है साहिल. ओके, पानी लगा दूं भाई? क्या बोल रहे हो समर्थ? ये तो वही हो गया, गोपी बहू अपने लैपटॉप को ऐसा साबु वाबू डाल के मस्त स्क्रब से रगड़ के क्लीन कर रही है. अरे वैसा वाला नहीं करना मेरे को समर्थ, किधर फंसा रहे मेरे को. ओके, लेट्स डू दिस. 2x + 5y is equal to 103. So can I say 5y is equal to 103 minus 2x? इसका क्या मतलब हो गया कि 103 से, from 103 I should remove a value which will give me a multiple of 5, है ना? multiple of 5 चाहिए मेरे को, है कि नहीं guys? So what we can start with? 103 से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा गाइस? फ्रॉम 103 व्हाट शुड आई रिमूव टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 5? द नंबर शुड ईदर एंड विद 0 और शुड एंड विद 5. यहाँ पे 0 से तो एंड होगा नहीं, क्योंकि 103 माइनस 3 विल गिव यू, सो 1.5 नहीं ले सकते. मतलब अपना लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, राइट? सो इफ x इज इक्वल टू 4,
x इज इक्वल टू 4 है ना, क्योंकि x अगर 4 है क्या हो जाएगा 103 माइनस 8 इस y का वैल्यू आएगा है ना। इफ x इज इक्वल टू 4 what will happen, 5y will become 103 minus 8 or 5y will become 95, which is how much, y gives us 19. Getting it guys? Now, so the next one will be what, अगर पहले 8 निकाला तो अभी 8 के मल्टीपल्स निकालेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या निकालेंगे 16 निकालेंगे है ना। नेक्स्ट नंबर वी विल ट्राई टू रिमूव विल बी व्हाट 16, क्योंकि 103 नॉट 16, 103 माइनस 8 फिर 18, यस 8 निकाला फिर 18 निकालेंगे, मतलब क्या 9 लेंगे, मतलब क्या आएगा 85 which will give us 17. सेम वे नेक्स्ट टर्म अपन क्या निकालेंगे 14 निकालेंगे, 4 निकाला 9 निकाला 14 निकालेंगे। आर यू गेटिंग दिस? यस, सो 103 माइनस 14 टाइम्स 2 मतलब क्या 28, तो क्या मिला हमें 75, 75 इज व्हाट 15 टाइम्स। अभी आपको सीरीज दिख रहा है यहाँ पे, आर यू एबल टू फाइंड अ सीरीज गाइस? यहाँ पे क्या हो रहा +5, दोबारा से +5, यहां पे क्या हो रहा -2, यहां पे वापस -2 है कि नहीं गाइस? yes, now we have to keep doing this, we have to keep doing this till we reach an extreme. yes, till we reach an extreme. extreme क्या होगा कि y 0 तो नहीं हो सकता बट y 1 हो सकता है ना, y could be 1. तो if y is 1 मतलब क्या 5 आना चाहिए, 103, yes 103 माइनस 5 98 by 2 49 हो जाएगा ये, this will go on till 49. so we basically just have to find out कि कितने टर्म्स है, that's it. yes, किसको लेके करेंगे, इसको लेके करेंगे, क्योंकि what are these odd numbers from 1 to 19 है ना गाइस, 1 से लेके 19 तक odd numbers. यस और नो, ये गिन लिए मतलब ये भी अपने आप गिन लेंगे, या तो ये गिनो या फिर ये गिनो। 1 से लेके 19 तक के ऑड नंबर्स 1 3 5 ऐसे करके 19 तक ऑड नंबर्स, कितने नंबर्स हुए ये 10 ऑड नंबर्स है ना। 1 से लेके 19 कितने ऑड नंबर्स है 10 ऑड नंबर्स है। यस 2n-1 ऑड नंबर ढूंढने के लिए 2n-1, अगर 2n-1 इज 19, लास्ट नंबर 19, तो 2n आपका क्या हो जाएगा 20 या n आपका क्या हो जाएगा 10. सो देर आर 10 सॉल्यूशंस दैट सैटिस्फाई दिस. हाँ बोलो अगर ये आपको जो मैंने लॉजिक लगाया वो समझ में आया कि नहीं. यस वेरी गुड तनिष, प्रिंस, समर्थ, बहुत बढ़िया. ठीक है ना. Yes, so it's all about going trial and error but with logic. Yes, I call it calculated trial and error. मैं इसको calculated trial and error बोलता हूँ कि अपन ट्रायल एंड एरर तो कर ही रहे हैं बट कैलकुलेटेड वे में, ऐसे रैंडम वैल्यूज लगा के नहीं कर रहे, कैलकुलेटेड वे में ट्रायल एंड एरर. ओके चलो वेरी गुड गाइस, सुपर्ब. Now we'll move on to some of the word problems. Yes, word problems में क्या होता है with linear equations, काफी कम आते हैं आजकल. linear equations based word problems बहुत कम आते हैं आजकल, but then since it's a part of what they have been asking in the past अपन कर रहे हैं. ठीक है. So यहाँ पे क्या होता है, आपको दो चीज ध्यान में रखना है. वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, सबसे पहले लैंग्वेज समझो. Right, understand the language used in the question. Please do not rush. Yes, read the entire question. Always read the entire question. Don't mess up, don't miss anything. Don't try to overread something or underread something. मत करो, ठीक है. And always understand, always differentiate the given data and expected data. Expected क्या है, अपन से क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो लिख के रखो ताकि यू डोंट मैस अप विद दैट. ठीक है. तो विल स्टार्ट ऑफ विद सम एग्जांपल्स. हियर इज वन.
यहां पे क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एजेस. यस, वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन में कहाँ आते, एजेस पे आते पहला. तो ट्राई विद दिस. कल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं समर्थ, कल भी करेंगे बट आज भी कर लेते हैं. कल तो करेंगे ही, आज भी कर लेते हैं, ठीक है. समर्थ, कम का मतलब ये नहीं है कि नहीं आता है. कम का मतलब ये नहीं है कि नहीं आता है, समझ रहे हो. कम का मतलब है कम आता है. ऐसा नहीं है कि सर कम आता है तो क्यों करें. चलिए गाइस ट्राई करिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. दो बजे तक करेंगे समर्थ, 2 बजे तक, ठीक है. 20 मिनट और देन विल रैप इट. तनिष सेज D. 2. हाउ अबाउट अदर्स. बाकी लोग आंसर. हो रहा है. शिवानी सेज D. अमन सेज D. वेदांत सेज D. 2.2 आ रहा है. ऐसा तो नहीं हो सकता. देयर इज नो वे यू कैन गेट 2.2. जो आंसर चॉइस में दिया हुआ है वही उसी में से होगा ना. चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस, ठीक है. तो पहले इक्वेशन से करके बताऊंगा. फर्स्ट विल डू इट विथ इक्वेशंस, देन वी विल डू इट विथ रेशियोज. ओके, पहले इक्वेशन से. x इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन y. इसका क्या मतलब है कि x का जो एज है वो y से 3 टाइम्स y ज्यादा है. अंडरस्टूड. y से 3 टाइम्स y ज्यादा है. 3 टाइम्स ऑफ y नहीं है, 3 टाइम्स मोर देन y. यस, तो इसका क्या मतलब हो गया, x इज इक्वल टू 4y. पहला इक्वेशन हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 4y. ओके, What is the second equation? They're saying after 8 years, 8 साल बाद, अगर x और y इनका प्रेजेंट एजेस है तो 8 years बाद x का एज क्या हो जाएगा, x plus 8, है ना. तो ये क्या बोल रहे हैं कि x plus 8 is 2.5 times of y's age. 2.5 which is 5/2 लिखते हैं. 5/2 टाइम्स किसका एज, y का एज. y का एज भी क्या हो जाएगा, 8 years आगे बढ़ेगा. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक गाइस. ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि एक बंदा जब टाइम में आगे जाता है तो दूसरा बंदा वहीं पे नहीं रहता है. दिस इज नॉट क्या बोलते हैं अपना एंड गेम वाला टाइम ट्रैवल वाला सीन नहीं है. ओके, दिस इज नॉट वन ऑफ दोस. ओके, सो व्हाट हैपेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे यू विल गेट 2x plus 16 is equal to 5y plus 40. yes, अभी x का वैल्यू 5y, अपन को क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर अनदर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ y's एज. यस, तो पहले x और y का एज ढूंढ लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x और y का एज ढूंढेंगे, है ना. सो व्हाट विल वी डू, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन प्लग इन करो, गो फॉर इट. तो x इक्वल टू 4y सब्सटीट्यूट करो. x इज 4y, 2 into 4y is 8y minus 5y is equal to 40 minus 16. So what are you getting, 3y is equal to 24 और y is equal to 8. तो आपको क्या मिल रहा है कि y का एज जो है वो क्या है, 8 है. y is 8 years old. yes, present age.
So if y is 8 years old currently, then what is x का current age? 32. 4 into y 32 है कि नहीं guys? ये आया क्या आप लोगों को समझ में? But now what is the actual question? Actual question क्या है कि after another 8 years how many times would he be of y's age? After another 8 years मतलब 8 पहले हो गया था, एक और 8 plus 8 16 years बाद, this is 24. 16 years बाद this will be how much? 48. तो x is how many times y? x is 2 times y, है ना? आया समझ में ये? आफ्टर अनदर 8 years, अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी यहां पे. अगर लैंग्वेज में आप थोड़ा सा गलती करते हो तो आंसर आपको गलत आएगा. से यस इफ दिस इज क्लियर गाइस फॉर एवरीवन, ईच वन ऑफ यू. या नाउ दिस इज वन वे ऑफ डूइंग यूजिंग इक्वेशंस. अनदर वे ऑफ डूइंग वुड बी यूजिंग रेशियोज. यस, रेशियो रख के करेंगे एक्स और वाई का. ओके, एक एक्स इज एज 4 times मोर, मतलब अगर y का एज 1 है तो x का 4 है. इफ y इज 1 years old then x will be 4 years old. 1 year old 4 years old, right? प्रेजेंट में 4 years later 8 years later plus 8 years क्या हो रहा? he would be 2.5 times of y's age. मतलब अगर y 2 है तो x क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. yes or no? If y is 2 then x becomes 5. Yes. So here what do we end up getting? You remember this ratios में अपन ने किया था. यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है. इसका क्या मतलब हो गया? सब जगह पे अपन x लगा सकते हैं, कॉमन मल्टीपल x, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 minus 4 is 1x is equal to 8. तो 8 अपन सब जगह ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे. प्रेजेंट एज क्या हो गया? 4 into 8 32, 8 into 1 8. सो x का प्रेजेंट एज 32, y का प्रेजेंट एज 8. 16 16 ऐड करो, 48 एंड 24 क्या रेशियो है? 1:2. गॉट इट? समर्थ अपन ने रेशियोज में बात करी थी ना, यू रिमेंबर? अपन ने रेशियोज में इसके बारे में बात करी थी, ठीक है? क्योंकि 8 years बाद में, आफ्टर 8 years, इसलिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई दिस. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एजेस. हाय नवनीत. यू कैन स्टार्ट नवनीत, आप स्टार्ट कर सकते हो, अभी से भी कर सकते हो. इफ यू जस्ट स्टार्टेड BBA यू कैन गिव योर कैट इन योर प्री फाइनल ईयर, है ना? और आई गेस इवन इन फाइनल ईयर में आप दे सकते हो अपना कैट. So when you are in your final year, you can give CAT. Okay? You can start your preparation now itself. Yes. It's better if you start early. आप जितना जल्दी चालू करोगे उतना बेटर है, क्योंकि आप उतना आराम से कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो, है ना? यस समर्थ. आंसर्स गाइस ट्राई करिए वाला. Sahil says A.
लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. व्हेन दे से हु, यहां पे जो हु है वो कौन है? हु इज दिस हु? इज इट बीटा और इज इट अल्फा? बताओ गाइस, टेल मी हु इज दिस हु. कॉमा डाल के जो हु लगाया है वो हु कौन है? इज इट अल्फा और बीटा? बीटा, राइट. whenever you see who guys, देखो ध्यान से देखो, कॉमा के बाद who या which अगर आता है, कॉमा के बाद who या which आता है, it always talks about the last person spoken. लास्ट किसके बारे में बात किया था? बेटा के बारे में, राइट. लास्ट किसके बारे में बात किया था? बीटा के बारे में. सो who has to be this बीटा. ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे. अल्फा इज 2 years older than बीटा. अल्फा इज 2 years older than बीटा. हु इज मतलब क्या? बीटा इज 2 times as old as gamma. 2 times gamma. Yes, understood. Now what are they asking? If the sum of their ages, alpha plus beta plus gamma, is 27, then how old is beta? Yes, so if you want you can convert everything in terms of beta. Alpha is beta plus 2 plus beta is itself. Gamma is half of beta. Yes, we take it as 0.5 beta. This will be equal to what? 27. So what are you getting? 2.5 beta is 27 minus 2, 25. तो बीटा कितना? 10. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन. यस, सो वेरी गुड साहिल, प्रिंस, वेरी गुड वेदांत, शिवानी, अमन, बहुत बड़ी, वेरी गुड, ग्रेट जॉब गाइस एवरीवन. तो चलो इसके साथ अपन चलो एक और कर ही लेते हैं. डू वन मोर. Yeah, try this one. Last question try करेंगे. चलो, this is the last question. Start करो. शिवानी, यस, आते हैं, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली बट इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि कैट में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं. कैट में इजी, मीडियम, हार्ड तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. यस, people who set up CAT का पेपर are evil. I agree, they are evil but they are not sadists, right? They are not sadists, right? मतलब वो लोग ऐसा सोशियोपैथ नहीं है, evil है, yes, but they are not sociopaths. okay, हाँ अमन, डेली होगा, every day, Monday to Friday. Saturday sometimes, we'll see how Saturday works, but Monday to Friday every day. Okay, Shirley says A, Sahil says C. बेसिक सा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केबल्स. लेट्स से फर्स्ट टाइप इज A, second type is B, third type is C. The sum of the lengths of first and second is 45. A plus B is 45. Second and third का sum B plus C is how much? 55.
If the sum of third and thrice the length of first, third and thrice the length of first is how much? 90. Then they're asking the length of the third cable. C का value पूछ रहे हैं अपन से. Yes, we have to find out how much is C. You can go by reverse engineering if you want, या फिर direct solve करो. Yes. So what can we do? Subtract these two. दोनों को subtract करो. B plus C which is 55 minus A plus B which is 45. Subtract करो, इसे क्या हो जाएगा? Plus B minus B गया. C minus A is 10. C minus A is 10. तो क्या अपन बोल सकते कि A is basically C minus 10? ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो. A का वैल्यू क्या है? C minus 10. यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो. तो C plus 3 into C minus 30 is 90. So what are you getting? 4C is 120. C is 30 meters. Got it? Yeah. So we just have to keep our eye on what is expected. ये अपना expected value है, इस पे आंख रखो. Don't end up finding out A का value, B का value, फिर C का value, ऐसे मत करो. Yes, जो अपन को चाहिए उस पे नजर रखो और वो डायरेक्टली निकालो. ठीक है? इसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग से भी कर सकते हो. अगर 30 है, if it is 30, if C is 30, यहाँ पे प्लग इन किया तो B क्या मिला? If C is 30, then B has to be 25. If B is 25, then A has to be 20. ठीक है ना? चलो guys, super, बहुत बढ़िया, very good. If you're preparing for CAT 2021 and other management entrance tests, you can take 6 months का subscription. CAT and other management entrance tests for 2022, you can take 18 months का subscription. And if you're preparing them for 2023, you can take 24 month का subscription. Use my code Surana Live. You will get 10% discount. If you have any doubts or questions with this, you can ask me on Telegram. I'll help you out. ठीक है? Plus के अलावा we also have iconic subscription जहाँ पे plus के तो सारे benefits मिलेंगे, but आपको one-on-one sessions मिलेंगे with your mentors. इन one-on-one sessions में आप डाउट पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, कोई भी टाइप का मेंटरशिप आपको चाहिए, एप्लीकेशन में, प्रोफाइल में, कैसे कॉलेजेस अप्लाई करें, कैसे प्रोग्राम्स अप्लाई करें, इज दिस कॉलेज वर्थ इट, इस स्कोर पे ये मिलेगा क्या, ऑल दोज डाउट्स यू कैन आस्क देम एंड दे विल हेल्प यू आउट विथ एवरीथिंग. ठीक है? इसमें भी 6 months, 12 months और 24 months का पैकेज है. Use my code Surana Live for your 10% discount. ठीक है? Yes, Sahil. Today at 3 p.m. Today at 3 p.m. we are doing harmonic progression, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean का relation, all of that. 3 बजे. Okay, 3 o'clock today. So next classes 3 p.m. on YouTube and 6 p.m. on special. Okay. ये ऐप पे है. I'll share the link with you guys soon. Alright guys, thank you so much for being a part of this session. I hope you learned something today. Keep learning. Let's crack it.